Good morning to all of you. This is Neha, your course teacher, which is Introductory Agro-Meteorology and Climate Change, and your course number is AMET-5311. Okay. So in our previous lecture, we had talking about this forms of condensation. Okay. So then forms of condensation we had already studied in dew and fog formation. Okay. So in this lecture we had discussed about the condensation forms in the so favorable conditions of favorable conditions for the fog formation we could say. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो फॉग का फॉर्मेशन का फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है. ओके, सो सच एज एक्सेसिव मॉइस्चर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी ग्रेटर देन 75%. ठीक है, सो हमने देखा कि जो भी एयर है वो कंडेंस अवस्था में होके सैचुरेटेड हो जाता है एंड जब वो अपलिफ्ट करता है. ठीक है, यूजुअली जो फॉग्स इज ऑलवेज रेड्यूस द विजिबिलिटी अबाउट 1 किलोमीटर एंड सो ऑन ऑल्सो. ठीक है, तो जब क्यों ऐसा होता है दैट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 75%. ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है वो क्रिएट इसी वजह से होता है जब भी जो इनविजिबल, ठीक है, जो इनविजिबल या माइक्रोस्कोपिक जो भी वाटर वेपर हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जब वो एयर से क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एयर से एक्यूमुलेट हो जाते हैं और सैचुरेट हो जाते हैं. किस सिचुएशन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में. ठीक है, जिनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% से क्या होती है, ज़्यादा होती है. उस कंडीशन में जो ग्राउंड लेवल पे हॉरिजॉन्टली जो क्रिएट होता है फेनोमेना, जिससे विजिबिलिटी विच हैज़ रेड्यूसेस सम विजिबिलिटी वी कैन से, सो दैट इज कॉल्ड द फॉग. ठीक है, सो कंडीशंस फॉर फेवरेबल फॉग इज एक्सेसिव मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज शुड बी ग्रेटर देन 75%. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 75%, then fog formation could be started. Okay, then calm and light winds. काफ़ी calm light winds means that the wind velocity is very less than the atmosphere. And then anticyclonic winds is also created the formation of the winds. Okay, and then there are some types of fog. ओके, सो हमने देखा कि फॉग का फॉर्मेशन होता क्या है, कैसे होता है, फॉग क्या है और फेवरेबल कंडीशन क्या होता है. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन फॉग फॉर्मेशन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलवेज शुड बी मोर देन 75%. ओके, so there are some types of fog. So first is evaporation fog. So in evaporation fog we have frontal fog and stream fog, then cooling fog. So in that cooling fog we have two further phenomena, which is advection fog and radiation fog. Okay, so these are the types of fog. Okay, so let us move. And then inversion fog and upslope fog. Okay, so then we could say that evaporation fog is further divided by frontal fog and steam fog, and cooling fog is further divided in 4 parts, which is advection fog, radiation fog, inversion fog and upslope fog. Okay, so we will study these all types of fog. Okay, so first one in evaporation fog. Okay, so what is evaporation fog? So in evaporation fog we have 2 categories. First one is frontal fog and second one is steam fog. So let us see what is frontal fog. Okay, so when warm air falls through cold air's fog or stratus clouds from at the frontal surface due to supersaturation caused by evaporation from warm rain into cold air. Okay, so this is very important, frontal surface. So I will tell you what is frontal surface in our classification of clouds. Okay, and same as the stratus clouds is also in under the category of classification of clouds. Okay, so this is the first category for clouds formation we could say. ठीक है, तो हम जब देखते हैं, ये मैं डिटेल में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाउड्स जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि ये क्या होता है. अभी के लिए हमें ये समझना है कि व्हेन वार्म एयर फॉल्स थ्रू
cold air, fog or stratus cloud from at the frontal surface. ठीक है, क्यों? क्योंकि सुपर सैचुरेशन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, सुपर सैचुरेशन हो जाता है कॉज बाय द इवापोरेशन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इवापोरेशन होता है, यानी वाष्पीकरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा, आप देखेंगे जो वर्षा कैसे होती है, रेनफॉल कैसे होता है, क्या होता है, वाटर इवापोरेट हो जाता है। क्यों होता है? टेम्परेचर की वजह से। काफ़ी गर्मी होती है, गर्मी क्रिएट होता है और वहाँ से वाटर इवापोरेट होता है, ऊपर जाता है, कोल्ड एयर से वही चीज़ टकराता है, ठीक है। कोल्ड एयर से क्या होता है, ब्लैंड हो जाता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैंड होने के बाद फिर वो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रेन, ठीक है। इसी को तो हम बारिश कहते हैं ना, रेन कहते हैं। सिमिलरली व्हेन वार्म एयर फॉल थ्रू अ कोल्ड एयर फॉग, ठीक है, तो कोल्ड एयर फॉग से जब वार्म एयर क्या होता है, मिल जाता है या गिरता है उसकी थ्रू, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटस क्लाउड, जो मैं आपको क्लाउड के क्लासिफिकेशन में डिटेल से पढ़ाऊंगी, ठीक है, उस सरफेस में जब सैचुरेशन कंडीशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो जिस वजह से इवापोरेशन हमें दिखाई पड़ता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए हम उस पर्टिकुलर फॉग को इवापोरेट फ्रंटल फॉग कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी फिनोमेना हैं, वो फ्रंटल सरफेस में क्रिएट होता है। ओके, देन स्टीम फॉग। सो जैज अ नेम सजेस्ट, व्हाट इज स्टीम? भाप, वाष्प, ठीक है। सो व्हाट इज स्टीम? वाष्प को हम कह सकते हैं स्टीम। तो इट इज अनस्टेबल टाइप ऑफ फॉग प्रोड्यूस बाय इवापोरेशन फ्रॉम वाटर सरफेस इनटू रिलेटिव कोल्ड एयर, ठीक है। तो ये जो भी है वो एक स्टेबल फॉग नहीं है, अनस्टेबल है, जो कि इवापोरेशन फॉग से क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो इवापोरेशन जो फॉग क्रिएट हुआ सैचुरेटेड कंडीशन की वजह से, तो उस कंडीशन की वजह से वहाँ पे स्टीम फॉग क्रिएट हुआ। क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि वाटर सरफेस जो है वो रिलेटिवली कोल्ड एयर के साथ बाइंड अप हो गया, ब्लैंड अप हो गया, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे भाप बन गया, ठीक है। अगर नॉर्मल आप समझें कि आप एक काफ़ी गर्म पानी का ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर एक कांच का ग्लास रख देते हैं, नॉर्मल ग्लास, ठीक है, ऊपर आप उसको ढक देते हैं कैप के जैसे, तो आप देखेंगे कि स्टीम फॉर्म हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि जो गर्म पानी का ग्लास है, ठीक है, तो जो गर्म पानी का ग्लास है वो ऑलरेडी काफ़ी हॉट है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, और जो जो खाली ग्लास है वो उसमें कूल एयर है, ठंडी एयर है ना। तो जब हम उसे उल्टा रख दिए तो क्या हुआ, जो गर्म एयर है, वार्म एयर है, वो कूल एयर के साथ क्या हुई, ब्लेंड अप हो गई, उसके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो गया, फॉग फॉर्म हो गया, ठीक है, और वाटर ड्रॉपलेट्स भी फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जो फॉग फॉर्म हुआ हम उसको कह सकते हैं दैट कुड बी स्टीम फॉग। ओके, सो स्टीम फॉग इज फाउंड मिडिल लैटिट्यूड्स इन द विसिनिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स इन ऑटमम व्हेन वाटर सरफेस आर स्टिल वार्म एंड एयर इज कोल्ड। ओके, सो जब भी वाटर सरफेस, क्योंकि काफ़ी गुड रेडिएटर है, काफ़ी गुड रेडिएटर है वाटर बॉडी, और काफ़ी गुड एब्जॉर्बर भी है वो, ठीक है, तो दोनों का काम करता है वाटर बॉडी। तो जब वो वार्म हो जाता है, काफ़ी वार्म होता है, वो गर्म हो जाता है और कोल्ड एयर के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तब ये फॉग जनरली हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। ओके, और जनरली हमें लेक्स वगैरह में या रिवर्स के जगह पे जो दिखाई पड़ते हैं वो इस टाइप के फॉग हमें दिखाई देते हैं। तो रिवर पे आप अर्ली मॉर्निंग जब जाएंगे, ठीक है, रिवर के साइड में या लेक साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको जनरली इस जो फॉग दिखाया जाएगा दैट कुड बी स्टीम फॉग। ओके, so let us move. Okay, then second is what? Cooling fog. So in cooling fog we have two category. First one is advection fog and then radiation fog. So first one we will see that what is advection fog. So the fog is produced by the transport of warm moist air over a colder surface.
ठीक है। तो देखिए थोड़े थोड़े बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं जिसको हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। फॉग है तो फॉग तो वैसे ही क्रिएट होगा ना, जब वार्म एयर कोल्ड एयर के संपर्क में आएगा तभी तो फॉग क्रिएट होगा सैचुरेटेड कंडीशन में, ठीक है। बट बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा था कि जब वार्म एयर वाटर बॉडी से जब कोल्ड एयर में जब वो ब्लेंड अप हुए थे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे, तब सैचुरेशन हो जा रहा था कंडीशन, है ना, उस वजह से इवापोरेशन फॉग और स्टीम फॉग क्रिएट हो रहा था। बट इन दैट केस क्या हो रहा है, जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वार्म मॉइस्ट का, नॉट कुड बी एयर, ठीक है, ये एयर नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है, वार्म मॉइस्ट है, ठीक है। सब तो जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है वार्म मॉइस्ट एयर का जिसमें अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, मॉइस्चर अवेलेबल है, हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ओवर अ कोल्डर सरफेस देन दिस फॉर्म इज क्रिएटेड, ओके। So resulting in the cooling of the surface layer below the dew point with condensation taking place in the form of fog, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हमें देखने को मिलता है एडवेक्शन फॉग। तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, ये याद रखेंगे कि जब जब वार्म एयर जो है पैसेज होते हैं या फॉल्स डाउन होते हैं थ्रू द कोल्ड एयर, देन दे मेक द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और सैचुरेटेड कंडीशन, देन created the evaporation fog, we could say. And when the fog produced by the transport of the warm moist air over the cold surface, that could be created a advection fog, we could say. Okay. So the second one is radiation fog. So what is radiation fog? Radiation fog or ground fog, it is also known as ground fog, ठीक है। So radiation fog or ground fog is produced when stagnant moist air is in contact with ground that have become progressively cooler during the night because of an excessive outgoing radiation, okay। सो जब भी रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है या कोई भी रेडिएशन है, जब वो आ रही है, ठीक है, जब वो ग्राउंड सरफेस पे पहुंच रही है और उसे स्टेबल मॉइस्ट में मौजूद, ठीक है, एटमॉस्फेयर के एयर में मौजूद मॉइस्ट के कांटेक्ट में जब वो आती है और उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो रेडिएशन, ठीक है, वो रेडिएशन जब हमारे ग्राउंड में पहुंच सकती है, जब हमारे ग्राउंड लेवल पे पहुंच सकती है, तो जो भी फॉग क्रिएट होता है जिसकी वजह से, उसको हम कह सकते हैं दैट कुड बी रेडिएशन फॉग, ठीक है। तो ये जो है, जो भी प्रोसेस है फॉग क्रिएट होने का, वो तो सेम है। वार्म एयर जो है या वार्म मॉइस्ट एयर जो है वो कूल मॉइस्ट एयर के या कूल एयर के संपर्क में आती है, सैचुरेट हो जाती है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे, और जो भी फिनोमिना क्रिएट होता है उसको हम फॉग कहते हैं, ठीक है। तो इन सब में बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो जनरली हमें फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में सिर्फ फॉग पढ़ना था, ड्यू पढ़ना था, बट मैं इसे इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ तक क्योंकि ये हमारे वेदर हज़ार्ड्स में भी है, ठीक है। तो वेदर हज़ार्ड्स में हमें डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो वेदर हज़ार्ड में हम इसे स्किप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में इसे डिटेल से पढ़ रखा है, ठीक है। दैट्स वाई मैं इसे क्लियरली समझा रही हूँ। सो द थर्ड वन इज इन्वर्जन फॉग. So it is a name given to any type of fog or stratus cloud that initially develops at the top of a moist layer. ठीक है. सो ये जो है, ये जो नेम से हमें समझ आ रहा है कि इन्वर्जन हो रहा है, जैसे टेम्परेचर का इन्वर्जन होता है जैसे वैसी फॉग का इन्वर्जन हो रहा है. तो इट इज़ अ नेम गिवन टू एनी टाइप ऑफ फॉग और स्ट्रेटस क्लाउड दैट इनिशियली डेवलप एट द टॉप ऑफ द मॉइस्चर लेयर. तो देखिए इन्वर्जन फॉग हमने स्ट्रेटस क्लाउड को दे दिया है. ठीक है. दिस इज़ द फॉर्म्स ऑफ क्लाउड वी कैन से कि ये एक क्लाउड का फॉर्म्स है जिसको हमने स्ट्रेटस क्लाउड का फॉर्म्स है. जो स्ट्रेटस क्लाउड किसे कहते हैं ये मैं डिटेल में क्लाउड फॉर्मेशन में बताऊंगी. अभी सिर्फ ये है कि जो स्ट्रेटस क्लाउड होता है काफ़ी डेंस होता है एंड डेंस होने के साथ साथ वो ग्रे कलर का होता है, काफ़ी डार्क कलर का होता है. ठीक है. तो वो होता है क्या, स्ट्रेटस क्लाउड. ठीक है. तो बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि जो इन्वर्जन फॉग है वो एक प्रकार का क्लाउड ही है.
ठीक है। देन accompanied by the subsidence above the inversion, जो inversion create करता है, then intensifies the latter and produces the stratus cloud that may be built down to ground as fog। ठीक है, तो जो भी ये क्लाउड है वो ग्राउंड में जब फॉग होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द इन्वर्जन, तो इस टाइप के जो फॉग है हम उसको इन्वर्जन फॉग कहते हैं। ठीक है, तो बस आपको फॉग क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके कीवर्ड्स पते, और जो फॉग के जो भी टाइप्स हैं, है ना, जो भी फॉग के टाइप्स हैं उसके कीवर्ड्स आपको पता करना है। बाकी तो सेम डेफिनेशन है सबका। ठीक है, कीवर्ड्स मीन्स दैट कि आपका वार्म एयर जो है वो ऊपर अपलिफ्ट हो रहा है, अदरवाइज आपका वार्म एयर विद द मॉइस्ट वो कोल्ड एयर के संपर्क में आ रहा है। ठीक है, स्टीम में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके सिर्फ कीवर्ड्स अगर आपको याद है, ठीक है, तो आपको एकदम से मेजरली ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फॉग के डेफिनेशन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप ये लिख सकते हैं एग्जाम में। देन द लास्ट वन इज अपस्लोप फॉग। ठीक है, तो अपस्लोप फॉग क्या होता है? सो अपस्लोप फॉग इज अ स्टेबल टाइप फॉग रिजल्टिंग फ्रॉम द ग्रेजुअल और ओरोग्राफिक अपलिफ्टिंग ऑफ convectally stable air. So orographic uplifting is the some kind of types of cloud we could say। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ क्लाउड भी हम कंडेंसेशन का जो दूसरा फॉर्म है जो टोपोस्फियर में हमें देखने को मिलता है, जिसको हम क्लाउड कहते हैं। ठीक है, तो हम उसमें इसको डिटेल से पढ़ाई करेंगे। तो अपस्लोप फॉग में आप इतना याद रखेंगे कि ये स्टेबल टाइप का फॉग है। ठीक है, जो हमें हमेशा दिखाई पड़ता है। अब स्टेबल टाइप का फॉग मतलब क्लाउड ही है। क्लाउड हमें आसमान में, स्काई हमें जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो हमें ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है, ब्लैक स्काई दिखाई दे रहा है, वाइट स्काई दिखाई दे रहा है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ क्लाउड एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। तो वो स्टेबल टाइप का कंडेंसेशन है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अपस्लोप फॉग को हम क्या कहते हैं? स्टेबल टाइप का फॉग कह सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेजुअली क्या होता है, जो भी मॉइस्ट एयर है, कोल्ड एयर है, वार्म एयर, वो अपलिफ्ट कर रही है कंटिन्यूसली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, मतलब धीरे धीरे कंटिन्यूसली वो क्या कर रही है? अपलिफ्ट कर रही है और फॉग का फॉर्मेशन कर रही है, और दैट कुड बी अ वेरी स्टेबल फॉग विच इज़ क्लाउड। ठीक है, so the air cools adiabatically and the fog begins to form when it reaches an elevation where the air has cooled to saturation point। okay, so these all are about for the condensation forms and the fog types also। ठीक है, तो we have studied that types of fog right now। ठीक है, सो हमने देखा कि दो टाइप के बेसिकली फॉग होते हैं। ठीक है, कूलिंग फॉग होता है, एक इवापोरेशनल फॉग होता है। इवापोरेशनल फॉग जो है वो इवापोरेशन और स्टीम फॉग को क्रिएट करने में मदद करता है। एंड कूलिंग फॉग में हमने देखा कि एडवेक्शन टाइप का फॉग है, इन्वर्जन फॉग है। ठीक है, और एंड देन अपस्लोप फॉग है। ये जो टाइप्स ऑफ फॉग है वो किसकी कैटेगरी में आती है? कूलिंग एयर की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो इसके सिर्फ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो कंडेंसेशन का और भी फॉर्म है, जो क्लाउड है। ठीक है, तो क्लाउड जो है वो ट्रोपोस्फियर है, हम कह सकते हैं। ये सारे जो थे वो नियर द ग्राउंड लेवल थे। ठीक है, कंडेंसेशन फॉग नियर द ग्राउंड लेवल में जिस क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया था वो हमने देख लिया पूरा। ठीक है, इसके बाद से हम एक देखेंगे कि फ्रॉस्ट क्या होता है हमारा, और फ्रॉस्ट कैसे फॉर्म होता है, एंड देन वी विल सी व्हाट इज क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, वेयर क्लाउड फॉर्मेशन एंड देन सम टाइप्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन ऑल्सो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बी सेफ। थैंक